ناظرین بریک کے بعد اپنی اس خصوصی پیشکش کو آگے بڑھائیں گے۔ اس تقریب میں نہ صرف الامین تحریک کے بانی کی خدمات کا اعتراف کیا گیا بلکہ ان لوگوں کی بھی ہمت افزائی کی گئی جو کہ الامین تحریک سے وابستہ رہے ہیں یا پھر تعلیم کے شعبے میں نمایاں کام انجام دیتے رہے ہیں۔ دیکھیے یہ خاص رپورٹ۔ الامین ایجوکیشنل سوسائٹی ہر سال فاؤنڈرز ڈے کے موقع پر منتخب شخصیات کو سالانہ ایوارڈ سے نوازتی ہے۔ ان ایوارڈز میں الامین خطیب ایوارڈ، الامین اظہار تشکر ایوارڈ اور ڈاکٹر ممتاز احمد خان ایوارڈ شامل ہیں۔ بنگلورو کے معروف عالم دین مسجد بلال کے خطیب و امام مولانا محمد شاکر اللہ رشادی کو سال 2017 کا الامین خطیب ایوارڈ تفویض کیا گیا، جبکہ الامین تعلیمی اداروں کو فرنیچر فراہم کرنے والے MM & سنز کو الامین اظہار تشکر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر ممتاز احمد خان نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ ایوارڈ پیش کیے۔ اس موقع پر 10 شخصیات کو سال 2017 کا بابائے تعلیم ڈاکٹر ممتاز احمد خان ایوارڈ دیا گیا۔ ڈاکٹر ممتاز احمد خان ایوارڈ پانے والوں میں بنگلورو کے سماجی کارکن سید احمد، محمد یوسف خان عرف اسلم، محمد ذوالفقار علی، بدر کے محمد روشن خان، شکیل احمد، ممبئی کے رفیق قاضی، حیدرآباد کے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے ڈائریکٹر پروفیسر KR اقبال، الامین کے وائس پرنسپل رحمت اللہ تاج، الامین کالج آف ایجوکیشن کے پرنسپل ڈاکٹر رمیش، غوثیہ انڈسٹریل ٹریننگ سینٹر کے پرنسپل ناصر خان محمد روشن خان شامل رہے۔ اس موقع پر ایوارڈ پانے والوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے الامین کی تعلیمی خدمات کی ستائش کی۔ ملت کے لیے ہمارا پیغام یہی ہے کہ فی الحال حالات حاضرہ میں قوم پر، ملت پر جو حالات آئے ہیں، اس سے باہر نکلنے کا صرف ایک راستہ ہے، ایک ہتھیار ہے، وہ ہے علم حاصل کرنا۔ قوم و ملت کے بچے علم حاصل کریں اور تعلیمی میدان میں جہاں تک ہو سکے محنت کرتے ہوئے آگے بڑھیں، اور قوم کے سرمایہ داروں سے میری گزارش ہے کہ جو بچے ذہین ہیں اور تعلیمی صلاحیت رکھتے ہیں، اپنا سرمایہ ایسے بچوں پر لگا کر ان بچوں کی مدد کریں اور ایسے بچوں کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھائیں۔ یہی ایک ذریعہ ہے قوم و ملت کے ترقی کا اور آگے بڑھنے کا۔ میری نظر میں تعلیم جو تاریکی میں ڈوب گیا تھا ساؤتھ انڈیا، جنوبی ہندوستان، اس تاریکی میں ایک ایسا کرن ابھر آیا جس کو ڈاکٹر ممتاز کہتے ہیں، جو ایک فرد نہیں ہے، وہ اپنے آپ میں ایک انجمن ہے، جنہوں نے اتنے انجمنیں قائم کیے، اتنے کالجز قائم کیے، جس میں جنرل ایجوکیشن، کنونشن ایجوکیشن، میڈیکل، انجینئرنگ، لا، ہر ایک ایجوکیشنل فیسلٹی ہماری قوم کو، اور نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ سارے ہندوستان کے دوسرے قوموں کو بھی ان اداروں سے استفادہ کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اپنی 22 سال کی جو عمر ہے، جس میں 55 سال انہوں نے تعلیم کی خدمت میں گزارا ہے، میں تو ان کو اس موقع پر سلام کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو تعلیمی میدان میں جو ہے اللہ کا احسان، جو ڈاکٹر ممتاز احمد خان صاحب کے ساتھ جو ہم جو دلی خواہش سے جو ان کے ساتھ جو خدمت کرتے آ رہے ہیں ہم لوگ، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ آج اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار نے ہمیں ان کا فاؤنڈرز ڈے کے دن الحمدللہ ہمارے کو جو ایوارڈ سے جو نوازا گیا ہے، ہمیں بے انتہا شکر گزار ہیں ان کو، اور آگے چل کر قوم و ملت کے ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ جی، آج اللہ نے ایک موقع دیا مجھے، یہ اس ایوارڈ ڈاکٹر ممتاز صاحب کے طرف سے آ کے ہے آج، اور سب کے لیے اور میرے فیملی کے لیے بہت شکریہ کی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے، اور سبحان شریف سے یہ موقع دیا ہم کو ایک ایوارڈ کا، یہ اس کا ان کا بھی شکریہ کر رہا ہوں، اور ڈاکٹر صاحب کا بھی شکریہ کر رہا ہوں میں آپ کو۔ I'm very happy whatever I have served, they have recognized my services. I'm really very happy. Still it is now I have taken more responsibility to serve to the community as well as the institution. It is very much motivating me, encouraging me to do all these things, and it has given me some more responsibility to take care of all these things. So thanks a lot to the institution, thanks a lot to our chairman, founder chairman,
डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान। आज हमारे कौम को तालीम की बहुत ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है। जो डॉक्टर साहब ने जो 50 साल पहले शुरू किए थे, आज वो जाकर आज अलमीन मूवमेंट एक पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। डॉक्टर साहब जो बाबा तालीम हैं, उनके लिए जो ये काम किए हैं वो बहुत बहुत मुबारकबाद है। जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑल इंडिया में बनाए हैं, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। इस यादगार तकरीब में मोहम्मद सिबकतुल्लाह, सैयद जैनुल आबिदीन, वेंकटेश टी, मुस्तफ़ा खान, मालेगी गौडा, बेगम जान और तनवीर अहमद को सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन से नवाजा गया। जश्न का ये मौका हर एक के हौसलों को बुलंद कर रहा था और इस एहसास को आम कर रहा था कि अल अमीन का कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे। मैं एक जुगनू, मेरी हैसियत ही क्या, लेकिन ये कम नहीं, खसो खाशाक मुझसे रोशन है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। नाज़रीन, सन 1966 की बात है कि पेशे से डॉक्टर, एक बेहद नौजवान, जब अपने इर्द गिर्द जहालत, तालीमी पसमानदगी को देखता है तो कहीं ना कहीं उसका दिल तड़प उठता है, उसकी रूह तक बेचैन हो जाती है। और यही वो बेचैनी थी, यही वो तड़प थी जिसने उस नौजवान को कुछ करने पर मजबूर कर दिया और इस तरह अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी का क़याम अमल में आया। नाज़रीन, ये नौजवान कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान है, जो कि अब 82 बरस के हो चुके हैं, लेकिन आज भी अपने आप को 28 साल का नौजवान समझकर तालीम की तरक्की के लिए कोशा रहते हैं। इस तकरीब के इख्तिताम पर हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हलूर ने डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान से खास बातचीत की है, तो आप इस खास बातचीत से लुत्फ अंदोज होइए और मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। आदाब। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तालीम के मैदान में एक मर्द मुजाहिद की तरह खिदमत अंजाम देने वाले, तालीम के मीनार के तौर पर, तालीम के रोशन चिराग के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले, बाबाए तालीम के नाम से जाने जाने वाले डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका इस्तकबाल है आज के इस मौके पर, जबकि आपका फाउंडर्स डे मनाया गया है। अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी की पूरी बिरादरी यहाँ पर मौजूद रही, तो क्या पैगाम है उम्मत के नाम, मिल्लत के नाम और कौम के नाम? सबसे पहले आपका शेर का शुक्रिया, मैं तो उसके काबिल नहीं हूँ, और क्योंकि हमारा ईमान यही है, अल्लाह सुब्हान ताला हमसे काम लेते हैं, हमारी खुशकिस्मती है वो हमारे लिए, हमको जो ये अच्छे काम के लिए चुन लिया है। दूसरी बात, हमारी आपको मालूम है ये तहरीक शुरू के 50 साल हो गए, अब अल्हम्दुलिल्लाह कारवान भी बन गया, सीमा भी मिल गई, हमको जो है मंजिल भी मिल गई। अब जो है एक बेहतरीन मंजिल बना के हम कौम के हवाले करके जा रहे हैं। उम्मीद है ये कौम जो है ये मंजिल को संभालेंगी और ये मंजिल के तरफ से सैकड़ों लोगों का फ़ायदा होगा, और इल्म की ताकत से जो है सिर्फ मुसलमान नहीं, इंसानियत को भी फ़ायदा होगा। और मेरा पैगाम ये है कि इल्म को अपनाओ, इल्म की ताकत हमें काफ़ी, दूसरी ताकतों की ज़रूरत नहीं है, और इल्म के ज़रिए अच्छे अखलाक पैदा करो, इल्म के ज़रिए हलाल रोटी सिखाना, खाना कमाना सिखाओ। दूसरी बात यह है, इल्म के ज़रिए एक आलमी सतह पर ख़ानदान बनाओ, जिसमें जो है हर मज़हब के लोग मौजूद हों, हर ज़ुबान बोलने वाले मौजूद हों, और जो है हर जगह के लोग मौजूद हों, हर मुल्क वाले लोग हों, ताकि ये जो है तफरीक़ात हो गए हैं, ये जाकर जो है एक प्यारा अलग अलग फूलों का, रंगों का, खुशबुओं का एक गुलदस्ता बने और दुनिया एक प्यारी जगह बन जाए, जैसा अल्लाह सुब्हान व तआला चाहता है। डॉक्टर साहब, आप 82 साल के हो गए हैं, थकावट महसूस नहीं होती? नहीं, आप गलत बोल रहे, मुझे 28 साल का हूँ। अब उल्टा बोलो। देखिए डॉक्टर साहब का ये जोश है कि अपने आप को 28 साल का कह रहे हैं और बड़े ही जोश के पुरजोश अंदाज में जो है तालीम की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। क्या सूरत हाल नज़र आ रही है सर फिल वक्त, जब 50 साल पहले आपने जब ये इदारा कायम किया और अब क्या फ़र्क आप महसूस करते हैं? अल्लाह के फल से जुनूब सुधर गया है। जुनूब के मुसलमान जो है तालीम की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, ख़ासकर लड़कियों का अच्छा पढ़ा रहे हैं, मगर हमें जो फ़िक्र है शुमाल की, शुमाल भी कितना भी कोशिश करो, वहाँ का मुसलमान
अच्छे मियारी तालीम इदारे क़ायम करके अभी मायल नहीं है, और उसके तरफ से अभी जो है वो जो मुल्क की जुदाई का जो ज़ख्म हुआ तो अभी ज़ख्म मौजूद है। अभी लोग शुमाल के लोग ये मुल्क में रहने की हिकमत अमली सीखे नहीं। हम जो है तालीम के ज़रिए अल्लाह का फ़ضل जो है सोच विचार कौम के बदला दिए, लड़कियों को पढ़ा रहे हैं। हर कौम जो है हमारी इज़्ज़त करती है, क्योंकि जो हाथ हमारा नीचे रहा अब ऊपर हो गया। अब सिर्फ मुसलमानों को नहीं, हर कौम की खिदमत करने की सलाहियत रखते हैं, मुल्क की मदद करने, दुनिया की मदद करने की हम सलाहियत रखते हैं। हमारे पास आपको मालूम होना चाहिए 100 फॉरेन स्टूडेंट यानी बैरून मुल्क के 100 तलबा तालिबात हमें पढ़ते हैं, और ईसाई मज़हब के नन्स हमारे पास पढ़ते हैं। ये हमारा अचीवमेंट है। मैं यही चाहूँगा कि ये प्याम, ये हमारी मिसाल जो है शुमाल के मुसलमान ये फॉलो करें, ख़ासकर यूपी के मुसलमान, ताकि वो भी जो है ज़्यादा तादाद में मुसलमान वहाँ रहते हैं, अगर वो तालीम की तरफ आ गए, इल्म की तरफ आ गए, और जो है बराबर जो है इल्म के जो में बातें जो उसमें अमल करें, तो ये मुल्क में जो है हम जो है ये तकलीफ़ के दौर से गुजर रहे हैं। अब वो अगर हो गया तो ये मुल्क के लिए बड़े ताकत बन जाएंगे, और मुल्क के हर बाशिंदा हमें जो है खुश रहेगा कि मुसलमान ये मुल्क में बसता है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि शुमाल के मुसलमानों को तालीम की जानिब मज़ीद तवज्जो देने की ज़रूरत है। जुनूब की अगर हम बात करते हैं, मुसलमान यकीनन तरक्की कर रहे हैं, लेकिन दीगर तबकों के मुकाबले अगर मवाजना किया जाए तो मुसलमान पीछे नज़र आते हैं आज भी तालीम के मैदान में। इसका वजह यह है कि हम यहाँ तालीमी तहरीक बहुत देरी से शुरू करें, यानी सूबे तमिलनाडु, सूबे केरला तो ठीक वक्त पे शुरू हो गया, मगर उसके बाद कर्नाटक, आंध्रा, महाराष्ट्र में देरी से शुरू करें, मगर हमारी रफ्तार बहुत तेज़ की है। इंशाल्लाह दूसरे कौमों के बराबर हो जाएंगे। आखिर में क्या पैगाम है? आखिर काम को वही है, पुराना पहले जो पैगाम था वही पुराना पैगाम है। तालीम हासिल करते रहो, और तालीम के ज़रिए अखलाक पैदा करो, तालीम के ज़रिए माली ख़ुद पैदा करो, हलाल रोटी कमाओ, और ये दुनिया में रहने की हिकमत सीखो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखा के दिखाएँ, और हिकमत अमली से रहकर जो है आप सिर्फ आपके लिए नहीं पर मुल्क के लिए इंसानियत की ताकत बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया ETV से बात करने का। नाजरीन, ये थे अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के बानी डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान। इनका कहना यह है कि ये 82 साल के ज़रूर हुए हैं, लेकिन 28 साला एक नौजवान का जोश इनमें मौजूद है, और इसी तरह अपनी खिदमात का सिलसिला जारी रखेंगे। कैमरामैन राइडू के साथ रऊफ़ अहमद, ETV न्यूज़, बेंगलुरु।